Hello everyone, a very warm welcome to you in this third part of real numbers, and the question is here on the board. This is an extra question that is not in the NCERT, so note down the question as well. So let's see what the question is demanding of us. In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively, and we are asked to find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. So the condition is कि हर कमरे में same number of participants हो और same subjects के participants होने चाहिए हर रूम में, और हमें दिया क्या गया है कि कितने participants हर subject के हैं. हिंदी के 60 participants हैं, इंग्लिश के 84 और मैथ्स के 108 पार्टिसिपेंट्स है. सो बच्चे हमें जो निकालना है वो है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स. जो रूम्स का नंबर है वो ऑब्वियसली इन पार्टिसिपेंट्स के नंबर से छोटा होगा. जो नंबर दिया गया है वो पार्टिसिपेंट्स का है. अगर हम उसका HCF निकालते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी द स्मॉलर नंबर दैट विल बी गिविंग अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल हु कैन बी सीटेड इन वन रूम. सो इन any case we are supposed to find out the HCF. So HCF of 60, 84 and 108 first of all we'll try to find out, and you can go for any of the techniques. I am using prime factorization. 60 के prime factors हमारे पास बन रहे हैं 2 square into 3 into 5. 84 is 12, 7s are 84, so it can be 2 square into 3 into 7. 108 is 12 into 9, so it can be 2 square into 3 cube. अगर अब हम HCF निकालें इनका तो क्या बना, जैसे कि आप जानते हैं HCF के लिए हमें सिर्फ वही कंसिडर करने होते हैं जो कॉमन है, एंड वन विद द स्मॉलेस्ट पार्ट्स. 2s are in all of them, 3s are in all of them, and we have 2 square into 3 raised to power 1. 4 3s are 12. और ये HCF किसका है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का. इट मीन्स हर रूम में 12 लोग बैठ सकते हैं. अब हिंदी वाले में के लिए हमें कितने कमरे चाहिए, इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने कमरे चाहिए, मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने कमरे चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे. सो नंबर ऑफ रूम्स फॉर पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, हिंदी के कितने कैंडिडेट्स है 60, HCF is 12, it means हिंदी वालों को 5 कमरे चाहिए. Then number of rooms for participants in English. English के total candidates हमारे पास 84 थे. HCF is 12, so we need 7 rooms for the participants in English, and number of rooms for participant in mathematics. Look, we have total 108 participants in mathematics, and the HCF is 12, so it is 108 upon 12. So this is 9. Again, let's read before winding up. Let's read. हमसे मांगा क्या गया था? They have asked us to find the minimum number of rooms. ये क्वेश्चन था. तो टोटल रूम्स कितने चाहिए इस सेमिनार के लिए हमें? 5 plus 7 plus 9. So total number of rooms required is equal to 5 plus 7 plus 9, that means 21. This is how we are supposed to think and work out the statement questions like this, and after that just note it down. We'll be proceeding to the next worksheet, that is 1.3. Now in exercise 1.3 we are required to prove the irrationality of some irrational numbers, and I'll help you in guiding with the algorithm required for the same, and concentrate on learning one of them so that you can do the rest of them yourself.
I'm putting up an extra question. Prove that square root 2 is an irrational number. After proving this, hence prove part 1, square root 2 plus 1 is irrational. Another one, 3 into square root 2 is irrational. So let's try to understand the question once again. Question क्या है? Prove that root 2 is an irrational number. सबसे पहले हमें ये prove करना है कि square root 2 is an irrational number. Once we have proved that, we are required to prove that square root 2 plus 1 is an irrational number and then 3 into square root 2 is an irrational number. यानी अगर मुझे ये दोनों में से कोई भी एक पार्ट प्रूव करने को आ जाए तब भी मुझे ये पार्ट तो जरूर प्रूव करना है. Until and unless वो खुद क्वेश्चन में ये लिखते कि given that square root 2 is an irrational number, prove this part. अगर ये नहीं लिखा तो it means we are supposed to prove the part in the root. Now I'm starting with the algorithm and this is going to be with the proof by contradiction. So be very particular while listening. Proof. If possible, we know that it's not possible. We all know that square root 2 is an irrational number. फिर भी हम suppose करने जा रहे हैं. If possible, let square root 2 be a rational number. हम मानने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि square root 2 एक rational number है. अगर square root 2 rational number है तो ये पक्का p by q के फॉर्म में होना चाहिए. So p by q is equal to root 2 put up कर सकते हैं. So let p by q is equal to square root 2. ब्रैकेट में आप कंडीशंस लिखेंगे where q is not equal to 0, p and q belongs to integers. इंटीजर्स के लिए हम i या z यूज करते हैं. and highest common factor of p and q is 1. हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1 लिखने की जगह हम ये भी लिख सकते हैं p एंड q आर को-प्राइम, क्योंकि को-प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके HCF जो है वो 1 होता है. हाइस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. आफ्टर दिस स्टेप लेट्स कंटिन्यू. आई एम टेकिंग q to the other side. This becomes under root 2 into q. Next step, squaring both sides. What do we get? p square is equal to 2 into q square. अब बहुत ध्यान से देखिए, 2 into q square है ये नंबर. q की जगह कोई भी नंबर हो सकता है. एक चीज तो पक्का है कि अगर 2 इससे मल्टीप्लाई करता है, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 2 into q square. 2 डिवाइड्स 2 into q square का मतलब है कि जब 2 into q square को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया. यानी दूसरी भाषा में हम यूँ कह लें कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 into q square. अब जो 2q square है उसकी वैल्यू p square के बराबर है, राइट? सो वी कैन ऑल्सो से 2 डिवाइड्स p square इज वेल. फ्लो चार्ट के टाइम पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की बात की थी. इफ यू जस्ट रिवाइज दैट, इट इज अ कन्वेंशन कि अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर का भी फैक्टर होगा. आप इसे किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं. सो 2 डिवाइड्स p as well, right? This implies 2 is the factor of p. यहाँ पर इस स्टेप का नाम मैं 1 रख रही हूँ, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. एंड दिस स्टेप इज 2. इसके बाद इफ यू प्रेफर तो आप मेरी तरह पेज को डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल इसके सामने सामने चल सकते हैं. लास्ट टाइम इनको पकड़िए. दिस इज 2 इज द फैक्टर ऑफ p. ये हमने यहां से उठाया जहां हमने कहा 2 डिवाइड्स p, यानी p को 2 से डिवाइड किया जा सकता है. अगर p को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा. रिमाइंडर तो 0 ही होएगा ना, क्योंकि वो फैक्टर है. तो p अपॉन 2 इज इक्वल टू
ए मान लेते हैं वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशंस लिखना जरूरी है। उसके बाद अगले स्टेप में 2 को दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बिल्कुल सिमिलर ढंग के स्टेप्स जा रहे हैं। दिस इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। अब यूजिंग 1 p स्क्वायर की वैल्यू उधर डाल दीजिए, p स्क्वायर की जगह आ गया 2 इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। यू कैन पेंड ऑन यूजिंग 1। अब यहाँ q स्क्वायर रहने दीजिए, 2 उधर ले जाए तो 4a इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज 2 इंटू ए स्क्वायर। अब इस स्टेप को इस स्टेप से कोरिलेट करें, बिल्कुल सेम भाषा आ रही है। 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है कि अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 2a square. 2 divides 2a square means 2 is a factor of 2a square. Now 2a square is equal to q square. तो जो चीज़ 2a square के लिए कैपेबल है, एप्लीकेबल है, वो q square के लिए भी होगी, क्योंकि न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू इसी के बराबर है। सो 2 divides q square and by convention, जैसे मैंने आपको कहा इन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, 2 divides q as well. 2 divides q as well का मतलब हो गया 2 is the factor of q, right? अब इस स्टेप का नाम नंबर 3 रख दीजिए। Now just observe 2 and 3 carefully. यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 is a factor of p, यहाँ कह रहे हैं 2 is a factor of q, और देखिए हमने सपोज क्या किया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p and q is 1, यानी हम अपनी ही सपोजिशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। नाउ फ्रॉम 2 and 3, 2 is a common factor of p and q, but highest common factor of p and q is 1 by supposition. इसका मतलब हमारी अपनी सपोजिशन गलत होगी, स्टेप्स तो गलत नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन। Hence, √2 हमने सपोज किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, तो ये हमारी सपोजिशन गलत हो गई। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन, हेंस √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूव हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन का, जिसमें हमने ये प्रूव करना था कि √2 इज एन इरैशनल नंबर। आई रेज द बोर्ड एंड एक्सप्लेन हाउ आई कैन टेक अप सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार कि बच्चे, जब भी मैंने फर्स्ट पार्ट करना है तो उसके लिए भी √2 को इरैशनल, पहले ये सारे स्टेप्स लेने होंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है। अगर 3 मार्क्स में आए तो 2 मार्क्स की इतना होता है और 1 मार्क हमारे सिर्फ इस पार्ट के लिए होता है। बट इफ दे से √2 is an irrational number and prove this part, then it will come under 2 marks and you will have to do only the second part, which I'll take later. So just take this down, I'll erase the board and then we'll move to the next 2 parts. But I repeat again over here, बच्चे ये 2 पार्ट्स प्रूव करने के लिए पहले आपने √2 की रैशनैलिटी फेयर में शो करनी है। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैं इसका नाम ये रख देती हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट पार्ट और फिर सेकेंड पार्ट करके दिखाती हूँ। जस्ट टेक इट आउट। सो आफ्टर डूइंग दिस, आई एम मूविंग टू पार्ट 1। यहाँ हमें प्रूव करना है कि √2 + 1 इज एन इरैशनल नंबर। पहले हम लिख देते हैं √2 इज इरैशनल, प्रूव्ड। अब लेट √2 + 1 बी अ रैशनल नंबर। इसका कोई नाम रख दीजिए, से m।
इसका मतलब हमने क्या मान लिया, स्क्वायर रूट 2 + 1 इज ए, जब हमने कह दिया कि इट इज अ रैशनल नंबर। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस इरेशनल वाले हिस्से स्क्वायर रूट को आइसोलेट कर दूं, अकेले कर दूं। तो ये क्या बना, 1 यहाँ ऐड हो रहा था, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 तो ऑलरेडी रैशनल है, वी ऑल नो इट। तो m को हमने रैशनल माना है, तो इट मीन्स m - 1 इज रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, proved. But rational number is never equal to irrational number. Is not equal to irrational number. This implies our supposition is again wrong. हमने क्या सपोज किया था फिर से, we had supposed कि स्क्वायर रूट 2 + 1 रैशनल है, तो ये सपोजिशन हमारी कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, गलत हो गई। So it means square root 2 + 1 is irrational number. इसी तरह सेकेंड पार्ट भी जब आएगा तो हम कुछ इसी तरह मूव करेंगे। दिस वन पहले वो वाला हिस्सा करेंगे जो मैंने पिछली बार आपको करके दिखाया था बिफोर दिस पार्ट। स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव्ड। और बाय चांस क्वेश्चन में गिवन हो तो आप प्रूफ की जगह गिवन लिख सकते हैं और बाकी के स्टेप्स अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। लेट 3 × स्क्वायर रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। इसका भी कोई नाम रख सकते हैं, m रहने दो या n रख दो या p रख दो, सिर्फ p। यानी 3 × स्क्वायर रूट 2 को हमने p मान लिया, जिसे हमने रैशनल कहा है। लुक नाउ कीप इट इन माइंड कि हमने स्क्वायर रूट 2 को आइसोलेट करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा। p को रैशनल माने तो 3 भी रैशनल होता है, तो p/3 रैशनल हुआ। नाउ p/3 इज अ रैशनल नंबर, बट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर cannot be equal to irrational number, so our supposition is again wrong. हमने क्या सपोज किया था, we had supposed that 3 × root 2 is a rational number. तो अगर सपोजिशन गलत होगी, अगर नंबर रैशनल नहीं है तो दूसरी चॉइस एक ही बचती, इट इज इरेशनल नंबर। सो 3 × स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। नाउ बच्चे इस 2 की जगह, स्क्वायर रूट 2 की जगह कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है, स्क्वायर रूट 3 आ सकता है, स्क्वायर रूट 7 आ सकता है, स्क्वायर रूट 5 आ सकता है, स्क्वायर रूट 11, कुछ भी आ सकता है। आपको सेम एलॉग्रिथम हर जगह इस्तेमाल करना है, ओनली जहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा है वहाँ 5, 7, 3, 11 जो भी आएगा वो आप लिख सकते हो। सो इतना समझने के बाद एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन है वो आप सारे के सारे कर सकते हो, बट डोंट कॉन्सेंट्रेट yourself only to 2s and 5s। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 की जगह जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, कोई भी प्राइम नंबर आपको रूट के अंडर दिया जा सकता है, पर एल्गोरिथम हैज टू बी द सेम। उसे फॉलो कीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे वो नंबर डाल दीजिए जो आपको दिया गया, एंड विल बी एबल टू रीच द proof and the justification whatever has been asked of you. So I'm sure you'll be able to manage if you practice it. Ultimately maths help those if you give more time and practice it. Now I'll be moving on to the last part of this chapter, which is dealing with the decimal representation of real numbers. Just take it down and then we'll move to the next part. Come up to exercise 1.4 बच्चे। Before this, a little reminder to you of the properties that we have taken up.
Just note this one. It's a condition that will help you to identify whether a given rational number is a terminating rational number or a non-terminating irrational number. Just note down this result. If P by Q is a rational number in standard form. In standard form means highest common factor of the numerator and denominator is 1. उनकी further cutting नहीं होती. If P upon Q is a rational number in standard form, such that prime factors of Q, यानी denominator, are of form 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are positive integers. Then P by Q has a decimal representation which is terminating as a decimal representation which is terminating. जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और एप्लीकेबल होती है कि m और n में से कोई भी एक जीरो हो सकता है. m1 of m और n, either of m और n can be zero. इसका मतलब एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो उनमें से एक नहीं होगा. ओके, इसका मतलब अगर कोई नंबर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2s हो या सिर्फ 5s हो या 2s और 5s दोनों हो, तो इट मीन्स द नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और तीसरा नंबर आ जाता है, मान लीजिए किसी के प्राइम फैक्टर्स में 2 into 5 के साथ 3 आ जाता है, 2 के साथ 7 आ जाता है, या सिर्फ 5 से उसके साथ एक से 3 आ जाता है, तो इट मीन्स वो एक जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उस रैशनल नंबर की वो टर्मिनेटिंग नहीं होएगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होएगी. और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नंबर भी रैशनल है तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी रेकरिंग यानी रिपीटिंग. उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, क्वोशिएंट वाला हिस्सा है, वो रिपीट करेगा आफ्टर फ्यू डिजिट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. सो आई टेक अप अ फ्यू एग्जाम्पल्स आफ्टर दैट. बिफोर दैट इसके लिए आप कन्वर्स भी याद रखिए. ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म, here we can take P by Q is a rational number in standard form such that prime factorization of Q is not of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are integers. Positive integers लिखना चाहिए यहाँ पे. Then P by Q has a decimal representation which is non-terminating but repeating. Mind you, it is only then when, as I said, factors of prime factors of Q are not of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n. अब हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ पार्ट्स लेके इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. आई एम पिकिंग अप द फर्स्ट पार्ट. चलिए सेकंड पार्ट सबसे पहले देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इजी वन. 17/8 है. अब इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 और 8 का 1. आप इसकी कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आर 2 into 2 into 2. 5 नहीं है, बट मैंने जैसे कि कहा कि इन दोनों में से कोई m और n में से कोई एक 0 हो सकता है. सो दिस इज रैशनल नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 क्यूब. तो ये हमारे पास बन गया 17 into 125 अपॉन
10 रेज टू पावर 3। अब हम इसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में डाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, वी ऑल नो दैट, राइट। दैट इज वाई ये इस फॉर्म में टर्मिनेटिंग कहलाता है। एंड पिकिंग अप अनदर एग्जांपल, दिस टाइम द नंबर इज 15/1600, विच इज जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। क्या बना? 5 3s 15, 1 बचा, 5 2s 10 and then 0. This is 3/320. Now it is in the standard form. हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। This is 32, 2 raised to power 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 है तो 2 into 5, so 2 raised to power 6 into 5। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2s भी है और 5 भी है, तो ये तो वैसे ही टर्मिनेटिंग है। So these both are the examples of rational numbers which have terminating decimal representation. चलिए एक और करते हैं। This time I am having this number 23 upon, this is given in your textbook, question number 1 part 6, 2 cube into 5 square. Okay, I'll pick up the 7th part because this one is again going to be rational only. 129 upon 2 square into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 5. This is already in the standard form. इसका हमें और कुछ नहीं करना, और हमें डिनोमिनेटर के वजह से उन्होंने प्राइम फैक्टर्स भी बना के दे दिए पावर नोटेशन में। अब 2s भी हैं, 5s भी हैं, लेकिन एक तीसरा नंबर आ गया जो 2 और 5 के अलावा हटकर है। तो हमारे रूल के हिसाब से 2s हो सकते हैं, 5s हो सकते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, लेकिन अगर कोई तीसरा नंबर उनके साथ भी आ जाता है तो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगी, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। So you can pen down with the reason, this is non-terminating and repeating rational number। कहने का मतलब कि इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई कॉल इट NTR, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हम शॉर्ट में अपने टिप्स बना सकते हैं टू कीप द थिंग्स बेटर इन शॉर्टर फॉर्म इन आवर माइंड्स। सो दिस इज हाउ इफ यू गेट एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप लाइक द वन, देयर आर सो मेनी पार्ट्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, देयर आर 10 parts of the first question. Practice them and you'll come to know. Follow the same algorithm. Now let's move on to question number 2. It says write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मुझे बाई चांस मैं एक आपको समझा चुकी हूँ। 17/8 हमारे पास एक रैशनल नंबर, वी हैव प्रूव्ड इट, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2s है। सो इट प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n। तो अगर उसकी डेसिमल नोटेशन हमने बनानी है तो आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय दिस नंबर, दिस इज 17 into 125। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 से 85, 17 2 से 34 and 8 42, 17 1 is 7 and 4 21 upon 1000. So decimal representation is 2.125. This is orally by multiplying and dividing the same number you can do it. इसका एक टिप अगर आप चाहो तो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज आप ये काम लॉन्ग डिवीजन करके भी कर सकते हैं। द टिप्स आर, सपोज 2 into 5 10 होता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते जाए और इसे 5 से, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दिस इज 100। हमारे पास 2 प्लेसेस आ जाएंगे, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, 125 इंटू 8। लाइकवाइज आप एक एक बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कितने 2s हैं, हमें उतने ही 5s चाहिए। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना जस्ट 2 स्टेप्स का काम रह जाता है। एंड दोस if you are finding difficult dealing with these numbers, we can go for long division as well. And now the third question. There are 3 parts of this one, and the question says
The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether these numbers are rational or not. मतलब ये जो 3 पार्ट्स दिए हैं उनमें हमने ये भी डिसाइड करना है कि वो रैशनल हैं या नहीं हैं. अगर रैशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इरैशनल ऑब्वियसली. And next part of the question is, if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? अच्छा ये चीज़ मैं टेक्स्ट से आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ. पहला वाला पार्ट है आपको दिया हुआ. आई एम इरेजिंग दिस. This is question number 3. I'm erasing this part as well. The number is 43.124 1234 5 6 7 8 9. अब इस नंबर के आगे कोई डॉट्स नहीं है. अगर ये डॉट्स नहीं दिए गए या कोई बार भी कहीं नहीं है, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं दी गई तो इसका मतलब ये डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन खत्म हो चुकी है. इट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग. दिस नंबर, जो भी ये नंबर है जिसकी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज टर्मिनेटिंग. और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये तो रैशनल नंबर हुआ ना, because जो irrational numbers are always non-terminating, non-repeating. So this is a terminating rational number. अब दूसरे वाले की पहचान करें. The second one is 0.120. Then they have written 1200. After that they have 12000 and so on. अब ये जो पीछे डॉट्स चले हैं and so on का मतलब है कि this is non-terminating. अब अगर ये non-terminating है तो ये रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है. अगर रिपीटिंग हुआ तो रैशनल नंबर होगा और अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो ये इरैशनल हो जाएगा. तो देखते हैं कि ये रिपीटिंग है या नहीं. लुक, नंबर तो वही, डिजिट्स वही यूज हो रहे हैं 1 2 और 0, लेकिन किसी ऑर्डर में क्या हो रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट. यहाँ 1 2 के बाद एक 0 है, या 1 2 के बाद 2 zeros है, या 1 2 के बाद 3 zeros है और उसके बाद so on लिखा है. मीन्स हो सकता है अगली बार 1 2 के बाद 4 5 6 या 7 zeros हो. तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये रिपीट नहीं कर रहे. सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है. सो दिस इज एन इरैशनल नंबर. ठीक है बच्चे. अब लास्ट देखिए. लास्ट पे हमें नंबर दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में नंबर दे रखा है 43.1234 5 6 7 8 9. और इस सारे के ऊपर उन्होंने बार लगाई हुई है. अब इस बार का मतलब है कि दिस नंबर, ये जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स है वो इसी ऑर्डर में रिपीट करेंगे. इट विल बी समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर से वही बार बार आता जाएगा. बार का ये मतलब है कि जिन डिजिट्स के ऊपर बार लगी वो उसी ऑर्डर में खत्म होने के बाद फिर से रिपीट करेंगे. सो दिस इज, बार लगने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कौन से होते हैं? एनटीआर वाले कौन से होते हैं? दे आर रैशनल नंबर्स. सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर. So this is how, just by looking at the numbers, we can identify and tell what numbers are rational and what are irrational, and if they are rational तो वो क्या terminating है या फिर non terminating है, और अगर non terminating है तो क्या वो repeating है कि non repeating है. So this is how the judgments are done. This is all that is included in this chapter. फर्स्ट एक्सरसाइज इस बार लॉकडाउन की वजह से इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट आई विल बी हेल्पिंग यू टू नो व्हाट एक्चुअली इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF ऑफ द नंबर्स. एक ये पार्ट करके विल वाइंड अप विद द चैप्टर.
So I'm picking up the first exercise, only the first question, to guide you with the basics of what actually is Euclid's division algorithm. And if you are well versed with the long division method of finding out the HCF, you are not going to find it at all tough. Exercise 1.1. I'm picking up the first question, first part. HCF of 135 and 225. And this we have to find according to the question using Euclid's division algorithm. Algorithm means the series of steps which help us to reach a certain conclusion or a justification. So वो कौन से steps हमें लेने हैं, अगर उन्हें ठीक से समझना है तो हर क्वेश्चन के साथ ये जो हिस्सा में करने लगे आप रफ कॉलम में भी दिखा सकते हैं और फेयर में भी दिखा सकते हैं, बट इफ यू आर शोइंग इन द फेयर इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज जो स्टेप्स हम यहाँ करेंगे दे आर बेसिकली द स्टेप्स ऑफ डिविजन एल्गोरिथम गिवन बाय यूक्लिड. जो बड़ा वाला नंबर है लॉन्ग डिवीजन को उसे डिवीजन के अंदर डाल दीजिए. दिस इज 225 आई बिलीव. यस, डिवाइजर हम छोटे वाले को लेते हैं, दोनों था डिवाइड करें तो ये आ गया 135, रिमाइंडर निकालिए, दिस इज 90. और वंस दिस पार्ट इज स्मॉलर देन दिस, तो ये जो पिछला डिवाइजर था फिर से हमारा नया डिविडेंड बन जाता है और डिवीजन फिर से नए सिरे से शुरू हो जाती है. 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा हो जाएगा, विल मूव विद 1. सो दिस 45 इज स्मॉलर देन 90, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे. 90 को अगला डिविडेंड बना देंगे, 45 टू इज 90, सो रिमाइंडर 0. जब रिमाइंडर 0 आ जाती है ये डिविजन खत्म हो जाती है. एंड यू ऑल नो द हाइस्ट कॉमन फैक्टर is the last divisor left. Now moving on to the Euclid's algorithm, it says that out of पहले जजमेंट दिखाते हैं कि आप किस नंबर को डिविडेंड ले रहे हो क्यों. Since 225 is greater than 135, therefore 225 is equal to 135 into 1 plus 90. This is nothing but your division algorithm only. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So in the next step, since remainder is not 0, आपको ये स्टेप लिखना जरूरी है. चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, हम अगले स्टेप पे बढ़ रहे हैं. अगले स्टेप में 135 जो पिछला हमारा डिविडेंड था वो डिवाइजर डिविडेंड बन गया. Then this is 90 into 1 plus 45. Again remainder is not 0, वो तो 45 आ गया ना. Since remainder is not 0, we proceed further. This time 90 is our dividend, 45 is the divisor. 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 0 आ गया. Since remainder is 0, therefore HCF of 135 and 225 is the last divisor, that is 45. और बाई चांस 2 की जगह 3 नंबर के लिए आ जाए तो हमारा रूल होता है पहले 2 का हम HCF ढूंढ लेते हैं, फिर उन दोनों को जो HCF आ गया उस नंबर का और तीसरे नंबर का जो HCF आता है दैट इज द HCF of the 3 numbers required. So with this we wind up with this chapter and just practice hard. It's an easy chapter. Good day, good luck.